Hello, Assalamu alaikum students. Today I will be discussing one of the lessons from class 8th, and it is a short story titled as Rustum and Sohrab. Before I go to the story, let me first of all tell you what is a story and what is a short story here. You know, in your English book you find different lessons, there are dramas, sometimes plays, we read novels, we read short stories, जिसे उर्दू में आप अफसाना भी कहते हैं. इसमें क्या होता है, ये जो स्टोरी होती है, इट इज़ अ वर्क ऑफ अ प्रोज फिक्शन. जनरली फिक्शन होता है, because there are the genres that we use, prose or poetry, in which we find fiction and non-fiction, nothing to do with that. लेकिन ये स्टोरी जो है ये शॉर्ट लेंथ की होती है. दिस इज़ वेरी शॉर्ट इन लेंथ, इंक्लूडिंग अ फ्यू कैरेक्टर्स. इसमें कैरेक्टर होते हैं, यानी किरदार होते हैं, काम करने वाले होते हैं, कुछ होते हैं, फ्यू होते हैं, 1 से 6 तक, ये डिपेंड करता है. और ये एक सिंगल सेटिंग में बैठ के इसको किया जाता है. ड्रामा की तरह या प्ले की तरह इसको डिफरेंट सीन्स नहीं होते हैं, बल्कि एक ही सेटिंग में इसको एक ही सिटिंग में किया जाता है. इसका जो वर्ड लिमिट होता है वो बिल्कुल लिमिटेड है, एंड इसका एक प्लॉट होता है, प्लॉट स्ट्रक्चर, जिसमें चेन ऑफ इवेंट्स होते हैं, ओपनिंग, मिडल, क्लोजिंग एटसेट्रा, इन ऑर्डर टू डेवलप द स्टोरी. और कैरेक्टर्स मैंने बता दिया 1 से 6 तक होते हैं. डिफरेंट ये फिर डिपेंड करता है कि कैसी स्टोरी हो. कैरेक्टर्स तो बहुत किस्म के हैं, नहीं यहाँ पर मैं वो बयान नहीं करूँगा. इसमें जनरली डायलॉग्स लिखे जाते हैं, डायलॉग होते हैं कैरेक्टर्स के बीच. और सेटिंग और एटमॉस्फेयर जो है ये इसका एक अहम जुज़ है, जहाँ पर इसको पेश किया जाता है. और इसमें जो टेक्निक्स हैं, नैरेटिव टेक्निक्स, ये कुछ राइटर्स जो हैं इसको फर्स्ट पर्सन में लिखते हैं, फर्स्ट पर्सन व्यू, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में लिखे जाते हैं, या उसके अलावा पॉइंट ऑफ व्यू जो है ये डिफरेंट होता है फ्रॉम पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू. देन स्टोरी में एक थीम होता है, उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग भी होती है. क्यों हम स्टोरी पढ़ते हैं, क्यों हम ये लेसन्स पढ़ते हैं, प्रोज क्यों पढ़ते हैं, इसका एक हमें जो जनरल ऑब्जेक्टिव होता है वो ये है कि हम उसमें कुछ सीखें. बेसिक स्किल्स ऑफ लैंग्वेज जो हैं LSRW, लिसनिंग, यानी टीचर मैं पढ़ूंगा और आप सुनेंगे. लिसन, प्रॉपर लिसनिंग आपकी होनी चाहिए. व्हाट डज लिसनिंग मीन? लिसनिंग मीन व्हेन a teacher, when I read the story, you must understand what I say. That is listening. Then there is speaking. Some exercises are there which a teacher will do at the end of the story, so that students can able to speak even things for speaking purpose. Then there is reading and writing. Now, how you can be able to read your English and how you can be able to write. These are the general objectives. Then every genre has this kind of objective in mind. But while we read a story, why do we read a story? Because we learn some moral from the story. And have you heard, do you listen some stories? Yes, you listen. And today I will directly come to the topic and I will tell you a story, because students like to listen the stories, especially children up to 10th class, up to 12th class, they like stories, different kinds of stories. And I think present day these students generally they like even horror, these short films or these stories, what I have observed. And I hope that you will
inshallah like this story and open your books. This is a story in your book, page number 100, and the story is Rustum and Sohrab. Rustum and Sohrab. This is a story about a father and son, his son. Rustum is father and Sohrab is his son. Now, I have just summarized the story. I will tell you the whole story. You will listen me carefully, because I will tell you the meaning side by side. Then you will open the books and read it elaborately, whatever is there. But see, I will read it, and this is also written there. If you look towards your books, you can, but please listen to me carefully. But let me first of all give you the introduction about this story. Rustum and Sohrab is an interesting story from Persia, present day Iran. The story is about the great warrior called Rustum, who was called the shield of Persia, because he saved Persia many times from the invasions from those invaders. That is why he was a soldier, brave soldier. He had a son named Sohrab. उसका एक बेटा भी था, Sohrab उसका नाम था. But the situation was such that Rustum did not know that he had a son, because you will learn in the story what happened. वो अपने बेटे के बारे में जानता ही नहीं था कि उसका बेटा है, और किस तरह से वो जान गया वही देखना है, because this is a tragedy. Sometimes you find about dramas are written in some are tragic, some are comedies, some are tragic comedies. किसी में खुशी होती है बाद में, किसी में at the end we feel sad, and this is a story where we feel sad because a father kills his own son unknowingly. How Rustum kills his own son without knowing what happened. And that is why it so happened that in one of the fights between Rustum and Sohrab, Sohrab gets killed by his own father. So what happens? Let us read. Let you see the books and let you enjoy the story first. Long ago in Persia, it is about a country now called Iran, there lived a great soldier called Rustum. So Rustum was a soldier. वो सिपाही था, एक गवर्नमेंट में काम करता था, as a warrior, as a brave soldier. He was so brave that he was called the shield of Persia. Shield, because I will tell you the meaning of those words, those you find difficult. उर्दू में इसको सिपर कहते हैं, यानी something when we want to save ourselves, if a person having sword from the one hand, and here we use that kind of thing that we save ourselves from that. That is called a shield in English. The king Kaikous was so proud of him that he used to say that he had nothing to fear till Rustum was with him. So he was leading a party, that means soldiers. He was a leader soldier. So the king was happy. He hadn't any, उसका कोई भी ये खौफ नहीं था किसी भी हमले के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में, क्योंकि वो जानता था कि मेरे मुल्क में रुस्तुम जैसे सोल्जर्स हैं, तो मुझे क्या डर है अपने आप को या अपने सल्तनत को, अपने इस हुकूमत को बचाने का, क्योंकि उसका कोई डर ही नहीं था। रुस्तुम जैसा वहाँ पे सोल्जर्स थे। तो क्या हुआ? On the other hand, their enemies used to say that they could never dream to attack Persia till Rustum was there. See, Rustum had a great name because even the enemies means दुश्मन जो भी थे, जो उस मुल्क पर हमला करना चाहते थे, वो भी जानते थे कि अगर हमने इस मुल्क पर हमला करने की कोशिश की, इस बादशाह पर हमला करने की कोशिश की, तो वो नाकाम हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर रुस्तुम जैसे बहादुर सोल्जर्स थे। तो क्या हुआ? One day Rustum met a Tatar princess, Tanima.
and wished to marry her. They both liked each other, and Rustum married her. So Rustum married a girl namely Tanima. You must remember these names. But he had to leave her soon because the king called him back. He was outside the country and he married a girl. Then only after few days, कुछ ही दिनों के बाद क्या हुआ कि उसके मुल्क के अपने बादशाह ने उसको वापस बुलाया। क्यों बुलाया वापस? पहले ये देखो क्या हुआ कि शादी जब हो गई, द प्रिंसेस हैड टू बिड हिम गुड बाय विद सैडनेस। ये शहजादी नहीं चाहती थी कि वो, यानी तानिमा वो नहीं चाहती थी कि वो उसको छोड़े, वो उसको अलो करे कि जाए, लेकिन वो भी मजबूर थी क्योंकि बादशाह ने उसको बुलाया वापस। She was expecting a baby at that time. Rustum gave her a diamond and said that if a girl was born to her, she should marry her off, and if a son was born to her, she should tie that diamond on his arm and keep their marriage a secret. रुस्तुम ने इस अपनी बीवी को, जिसके साथ उसने शादी की थी, अब उसका एक बच्चा होने वाला था, तो क्या हुआ कि रुस्तुम ने उसको कहा कि अगर सबसे पहले आप इस शादी को सेक्रेट रखिए, किसी को मत बताइए। अगर आपको लड़की हमारी पैदा हो गई तो आप इस डायमंड को बेचिएगा और लड़की की शादी वगैरह कीजिए, मुझे मत बताइए। या अगर आपका लड़का हो गया तो क्या करना है आपको उसके ये डायमंड जो है ये उसके आर्म इस बाजू में आप इसको बांधिएगा और फिर उसको मेरे पास भेजिएगा, या क्या करना है, लेकिन ये डायमंड उसी के पास रखना है, लेकिन ये मैरिज एज ए सेक्रेट आपको रखना है। सो व्हाट हैपन्स आफ्टर सम टाइम ए सन वाज बोर्न टू तानिमा। तो खुदा का करना था, उनको बेटा पैदा हो गया। But she sent word to Rustum that a daughter was born to him, thinking that he would take her son away and make him a soldier. See what happens, what is the actually moral and what is the theme of the story and what happens when we do something wrong in our life. तो इसकी बीवी ने ये सोचा कि अगर मैं उसे ये बताऊं कि आपको बेटा हो गया है, यानी मैंने बेटे को जन्म दे दिया है, तो वो आ जाएगा और उसको ले जाएगा, उसको वो सोल्जर बनाएगा। तो उसने झूठ बोला उससे। शी टोल्ड ए लाई एंड टोल्ड हिम, उसने उसको ये बुलावा भेजा कि उसके यहाँ बेटी पैदा हो गई। वो देखो कि यहीं पर प्लॉट का जो है ना, ये ड्रामा, ये स्टोरी जो है किस तरह जब खात्मा होता है इसका, तो किस तरह ये लाई, जब हम कभी झूठ बोलते हैं तो इसका असर हमारी ज़िंदगी में कितना होता है। तो उसने क्या झूठ बोला? हाँ, उसने बोला कि ये हमारे यहाँ बेटी पैदा हो गई, बेटा नहीं। तो क्या हुआ? शी नेम्ड द चाइल्ड सोहराब। अब ये जो बेटा पैदा हो गया है उसने उसका नाम सोहराब रख दिया है। Sohrab grew up into a brave and handsome boy, and you know that he was the son of a brave warrior, brave soldier, Rustum, and that's why he also became brave. Tanima gave him such a kind of knowledge and such a kind of these tactics, he became as brave as his own father. He learned to use the sword and shield and became skilled in the arts of war. तो उसने महारत हासिल की है जंग में, लड़ने में, और वो एक बहुत ही अपने बाप की तरह बहुत ही जरूरतमंदाना और बहुत ही बहादुर सिपाही बन गया। कौन? सोहराब। जिस तरह एक सिपाही बनता है उसी तरह वो भी बन गया, जिस तरह रुस्तुम था। One day a warrior came to Sohrab's village and challenged people for a combat. उन दिनों क्या करते थे, एक दिन रुस्तुम, ये सोहराब अपने गांव में था, तो कोई दूसरा किसी जगह से आया, तो उसने वहाँ पे ऐलान कर दिया कि आइए, है कोई यहाँ पर जो मुझसे कुश्ती करे, जो मुझसे कुश्ती करे या मुझसे लड़े। तो क्या हुआ? तो ऐलान हो गया ये जंग का। तो फिर क्या हुआ?
सोहराब गॉट रेडी टू फाइट हिम। तो सोहराब आया सामने, उसने कहा मैं उससे लड़ूंगा, मुझे वो आई एम सिकल्ड लाइक माई, लेकिन वो नहीं जानता था उसका फादर कौन था। उसकी माँ ने उसको सिखाया था अच्छी तरह से आर्ट ऑफ वॉर, यानी हाउ टू फाइट विद अदर्स। बट द वॉरियर आस्क्ड हिम हिज फादर्स नेम विच ही डिड नॉट नो। इस वॉरियर ने जो उसके साथ लड़ना चाहता था, क्योंकि ये बनता था ज़रूरी, वो एक दूसरे से इंट्रोडक्शन देते थे कि आपके बाप का क्या नाम है, यानी आपका बाप कौन है। तो अब उसकी माँ ने छुपाया था उससे कि मेरा बाप कौन है, यानी आपका बाप कौन है, उसका नाम क्या है। तो यही हुआ कि उसने उसे कहा कि ठीक है, मैं पहले अपने माँ से बोलूं कि मेरे बाप का नाम क्या है। तो वो उसकी माँ ने छुपाया था आज तक, लेकिन इस सोहराब ने उसको मजबूर कर दिया है कि नाम कहने पे, तो इसलिए उसकी माँ ने उसको उसके बाप का नाम बता दिया। The warrior told Sohrab that he could not fight with people of inferior race, क्योंकि वो जो लड़ने वाला था, जंग करने वाला जो था, कुश्ती करने वाला था, उसने कहा कि मैं आम आदमियों से लड़ता नहीं, अगर कोई मुझसे लड़े तो वो भी किसी ग्रेट, उसका फादर भी कम से कम वॉरियर होना चाहिए, और जंग के जो यानी उसके साथ वो फाइट करे, वो इन्फीरियर के साथ किसी के साथ फाइट नहीं करेगा, बल्कि उनका जो ये फैमिली बैकग्राउंड होता है वो वॉरियर होना चाहिए। तो इसीलिए ये चला गया और अपने माँ से ये बताने के लिए कि मेरे बाप का क्या नाम है, वो कौन। ही केम बैक होम एंड आस्क्ड हिज मदर हु हिज फादर वॉज। तो उसने वो वापस आया और अपनी माँ को बता दिया कि बोलो मेरे बाप का क्या नाम है, मेरा बाप कौन है। At first she did not tell, but Sohrab insisted her. She told him that Rustum was his father. पहले तो उसकी माँ ने छुपाया था, लेकिन आखिरकार बेटे ने उसको मजबूर कर दिया और आखिरकार उसने उसके बाप का नाम बता ही दे दिया। Sohrab was